یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے DRM 1071 موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے. اور موبائل ایپ پر آپ جب اس کو لوڈ کریں گے تو اس پر نیبرہڈ سروس کے نام سے ہمارا جو اسٹیشن ہے وہ آپ کو دستیاب ہوگا. پیش خدمت ہے پروگرام آپ کا خط ملا. تمام سننے والوں کی خدمت میں سبیحہ کا پرخلوص آداب. گڈ مارننگ، صبح بخیر. کیسے مزاج آپ سبھی لوگوں کے؟ ٹھنڈی ٹھنڈی سی ایک اور صبح میں آپ اپنے گھروں میں چھٹی کا دن انجوائے کرتے ہوئے سن رہے ہوں گے یہ پروگرام، اور انتظار ہوگا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کچھ اچھی باتیں، کچھ کھٹی باتیں ہمیں بھیجی ہیں. تو چلیے شروعات کرتے ہیں. پہلا ای میل ہمارے پاس آیا ہے شہر ڈنگان بورگڑی سے دودو مل ماؤجی مل. لکھتے ہیں تمام سننے والوں اور آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کی پوری ٹیم کو خوش آمدید، سدا سلامت رہیے. اور پچھلا پروگرام انہوں نے سنا ہے، کہتے ہیں محترم نعیم الدین خان نے ہمارا خط بہت محبت، بہت پیار اور بہت پریم سے شامل کیا. نعیم بھائی اور اردو سروس ریڈیو کا بہت بہت شکریہ. اور اگر اردو سروس پروگرام کے بارے میں بات کریں تو پروگرام معمول کے مطابق اچھے چل رہے ہیں. ایک تمنا ہے کہ آل انڈیا ریڈیو اردو سروس ریڈیو سے کب سننے کو ملے گی. شہڈنگان بورڈگری سے دودو مل اور ماؤجی مل جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ بھی سلامت رہیے، خوش رہیے. اور چونکہ سال بھر کے بعد ہوگی اب ہماری اور آپ کی ملاقات، اس لیے ایڈوانس میں آپ سبھی لوگوں کو، نہ صرف دودو مل جی کو بلکہ کیم چھو. اور آگے انہوں نے لکھا، پروگرام پیش کرنے والوں کو دل سے سلام. تو ہماری جانب سے بھی گنگا کو اور گنگا کے ساتھ جو بھی لوگ سن رہے ہیں، ہلو گیتا، روشنی اور وشال، وجے، وراٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ سب کو بھی نمسکارم. اور کہتی ہیں کہ اردو سروس ہم روزانہ سنتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. 24 تاریخ کو پھولا پنڈتا جی نے میری پسند پروگرام پیش کیا، ہمیں بہت اچھا لگا. سارے گانے رفیع صاحب کی آواز میں سنوائے گئے، فلمی نغمے بھی بہت اچھے لگے. 24 تاریخ کو شمیم عثمانی جی نے تامل ارشاد پروگرام پیش کیا، وہ بھی ہمیں بے حد پسند آیا. شمیم عثمانی جی، سبیحہ جی، نعیم جی، پھولا جی، آپ سب کی پیشکش ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. ہم سبھی کے لیے لاکھوں دعائیں. آپ سب ہمیشہ خوش رہیے، سلامت رہیے، آمین ثم آمین. گنگا، آپ کا بہت بہت شکریہ. شکر گزار اس لیے کہ آپ نے بہت پیارے انداز میں لکھا سبھی لوگوں کے بارے میں، اور پروگرام آپ کو اچھے لگتے ہیں. جو پروگرام آپ نے پسند فرمائے پھولا جی کے پیش کیے ہوئے، 24 تاریخ کے پروگرام سنے ہیں آپ نے، اور تامل ارشاد بھی آپ نے پروگرام پسند فرمایا ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی. اچھا لگا ای میل آپ کا یہاں پا کر مجھے، اور بس یہی کہوں گی کہ آپ اسی طرح ہنستی مسکراتی رہیں. آنے والا سال آپ کے لیے نیک ہو. بیسٹ وشز آپ کے لیے بہت ساری. اور شکریہ ادا کر دوں جلدی سے اور آگے بڑھوں. 5 منٹ کم رہے گا پروگرام، کیونکہ 10:55 سے شروع ہو جائے گی من کی بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چانسر گوٹ کراچی سے امر رمیش کمار کھتری، ٹیلر ماسٹر کرشن لال کھتری، ارشد حسین بھائی، محمد امین، ظفر صادق شیخ، بلدیہ ٹاؤن والے لکھتے ہیں تمام لوگوں کو، میزبان صاحب یا صاحبہ جو بھی ہوں، اور کہتے ہیں کہ 2021 کا آپ کا خط ملا پروگرام کے نام آخری ای میل میرا. جی آخری ہے بے شک، اور اگلے سال سے نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہ بھی مجھے پوری امید ہے. امر رمیش کمار کھتری صاحب لکھتے ہیں، ارے 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 گھبرائیے مت، ہم 2022 میں بھی اردو سروس کے پروگراموں میں شامل ہوتے رہیں گے. یہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. اور گھبرائیں گے کیوں ہم بھلا؟ اتنا غول کا غول خدا جھوٹ نہ بلوائے، ہمارے سننے والوں کا ہمارے آس پاس رہتا ہے تو ہمیں تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا جی، آگے انہوں نے کیا لکھا کہ اردو سروس بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جب سے کورونا وائرس نازل ہوا ہے. اس کورونا وائرس سے اردو سروس کے لسنرز دوست کئی سارے خدا کو پیارے ہو گئے ہیں. خیر اب کام کی بات ہو جائے تو اچھا ہے. بالکل کام کی بات ہو جانی چاہیے. یہ ویسے آپ نے صحیح کہا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں رہے ہمارے، خدا مغفرت فرمائے سبھی لوگوں کی.
जहाँ भी हों अच्छे हों। पिछले इतवार को प्रोग्राम आपका खत मिला में हमारे ईमेल को आरजे नईम भाई ने पेश किया, जिसके लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स। ओके। बहर कैफ पूरे हफ्ते अच्छा, आप भी उन्हीं का तकिया कलाम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहते हैं, अमर रमेश कुमार खत्री लिख रहे हैं, बहर कैफ पूरे हफ्ते उर्दू सर्विस के प्रोग्राम जैसे जैसे वक्त मिलता रहा सुनते रहे, महसूस होते रहे, और बड़े खान साहब, अर्जुमंद अली खान साहब की आवाज़ में सुनने को मिली हैं इनको। इन्होंने खबरें सुनी हैं। एक सेकंड, ज़रा सा होल्ड कीजिएगा। ये मेरी किधर गए भाई तुम? हाँ, तो इन्होंने लिखा कि उनकी आवाज़ में इन्होंने खबरें सुनी तो अच्छा लगा है, और कहते हैं तमाम आरजेज ने प्रोग्राम अच्छे पेश किए, ख़ासतौर पर प्रोग्राम मेरी पसंद के तहत फूला पंडिता जी ने अच्छे नगमे सुनवाए। क्रिसमस के हवाले से प्रोग्राम पेश हुआ, वो लाजवाब लगा, अच्छी मालूमात मिली। 2021 की ईमेल्स को प्रोग्राम में शामिल करने का बेहद शुक्रिया। अब 2022 में हम बराबर ईमेल लिखते रहेंगे और आप प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। और बस हमने क्या लिखा है, ना ही आपने घबराना है ना ही हमने घबराना है, प्रोग्राम में हमारी ईमेल को शामिल रखना है और बस घबराना नहीं है। शुक्रिया। आई थिंक यही तो लिखा है आप सब, आपने जो मैंने पढ़ दिया है। और बाकी सत श्री अकाल के साथ, शुक्रिया के साथ इनका ईमेल अमर रमेश कुमार खत्री साहब का ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। बिल्कुल शुक्रिया आपका अमर रमेश कुमार खत्री, मास्टर कृष्णलाल खत्री, और तमाम लोगों का जो भी लोग प्रोग्राम में शामिल हुए। और उम्मीद यही है हमारी तरफ से भी कि आप लोग आइंदा भी हमारे प्रोग्रामों में शामिल रहेंगे। तो जनाब, शुक्रिया अदा करते हुए और आपको आने वाले साल 2022 की बहुत सारी मुबारकबाद देते हुए सिर्फ यही कहूँगी कि जैसे जैसे वक्त मिलता रहे आप हमारे प्रोग्रामों को सुनते रहिएगा और हमें राय और मशवरे से अपने नवाजते रहिएगा। ऑल द बेस्ट आप सबके लिए। अमर रमेश कुमार खत्री एंड फैमिली एंड तमाम फ्रेंड्स को आपका ख़त मिला प्रोग्राम में अगला जो ईमेल है वो है नमस्कार आदाब के साथ, बहुत ही खूबसूरत, रंगीन है, इतने सारे रंग हैं, पूरे कायनात के रंग गोया सिमट आए ईमेल में। ग्रीन सिटी गांधीधाम गुजरात से हैं प्रवीण सोनी, स्वाति, ख्याति और कलावती सोनी। उर्दू सर्विस की सभी प्रोग्राम रेगुलर सुनते हैं और हम पसंद करते हैं। और इन्होंने 17-16 दिसंबर को कहते हैं कि नईम भाई का 16 को, 17 को सबिहा बहन ने मेरी पसंद प्रोग्राम पेश किया, और 20 दिसंबर को नईम भाई ने और 18 दिसंबर को शमीम भाई ने तामिल इरशाद प्रोग्राम लाजवाब पेश किया। इसके लिए बहुत सारा शुक्रिया भेजा है और इमोजीज बनाए हैं इन्होंने पसंदीदगी के लिए, नमस्कार के लिए। और ग्रीन सिटी गुजरात से मेल हमारा ज़रूर शामिल कीजिएगा और गरम गरम चाय भेजी है, कबूल फरमाइए आप पेशकर्ता जी को। तो प्रवीण सोनी जी, ये चाय के लिए आपका बेहद शुक्रिया, और ये फूल भेजने के लिए और ये तमाम पसंदीदगी के लिए हम भी आपके शुक्रगुजार हैं। आपने प्रोग्राम हमारे पसंद फरमाए, आपको अच्छे लगे, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। नया साल आप सबको, सोनी जी और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो। आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पर तमाम प्रोग्राम पेश करने वाले प्रेजेंटर्स, पेशकर्ता और कमेटी। कौन सी वाली कमेटी भाई? उनको पुरखुलूस आदाब भेजा है, मतलब ये लिखना चाहते हैं हमारी पूरी टीम। राजू अग्रवाल हैं, शांति महाजन है, मनीष वर्मा है, कमल निगम और साथी हैं। राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से है ये इनका ईमेल। आदाब और सलाम के बाद लिखते हैं नए साल 2022 की तहे दिल से मुबारकबाद कबूल फरमाइए। और राजू अग्रवाल जी, आपको भी नव वर्ष की, नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद। पूरा साल अच्छा रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे, किसी तरह की किसी परेशानी में मुब्तला ना हो आप, ये हमारी भी आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। और नईम भाई ने पिछला प्रोग्राम पेश किया, तमाम सवालों के, तमाम सामीन के ख़तों के जवाब दिए गए, शुक्रिया। आगे लिखते हैं कि अब बहाना छोड़िए, 2 साल गुजरने के बाद भी दिन का फरमाइशी प्रोग्राम आपकी पसंद, यादें और गीत आज तक शुरू नहीं हुए हैं, रेडियो डीटीएच पर भी नहीं है, और अभी फरमाइशी प्रोग्राम सिर्फ रात को ही होता है। जो दिन वाला प्रोग्राम है वो भी शुरू कीजिए। आगे लाखों सामीन ने रेडियो सुनना बंद कर दिया है, चूँकि फरमाइशी प्रोग्राम रेडियो पर नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप रेडियो पर ये
प्रोग्राम शुरू करें और सामीन की जो पसंद है उसको मद्देनज़र रखें। पहले ही ख़तों का प्रोग्राम हो रहा था। कोरोना का रेडियो और ख़तों से कोई वास्ता नहीं है। दीगर स्टेशंस ख़तों और रेडियो के प्रोग्राम कर रहे हैं। रेडियो और ख़त शामिल जब किए जाते हैं तो ये सस्ता और आसान तरीक़ा होता है रेडियो के ज़रिए सुनना और ख़तों का शामिल हो जाना। इसे आप हमसे दूर कर रहे हैं। खुदा हाफिज़। अरे अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। खुदा हाफिज़ एकदम से हो गया। राजू अग्रवाल जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ईमेल किया। आपकी बहुत सारी जो ये शिकायतें हैं ये बिल्कुल बजा हैं अपनी जगह पर। और आप लिख रहे हैं कि इसमें ख़र्चा है, सुनने में मज़ा नहीं है, रेडियो एक आसान और सस्ता ज़रिया है, वग़ैरह वग़ैरह बातें। इंशाल्लाह देखिए वक्त बदलता रहता है, तो मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सा इंतज़ार बनाए रखिए, आप करते रहिए। यकीनी बात है कि कुछ फरमाइशी प्रोग्राम हो सकता है अनकरीब शुरू हो जाएं आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि देखिए हर स्टेशन, जैसे आपने भी दीगर स्टेशंस का हवाला दिया कि वहाँ पर सब जगह प्रोग्राम चल रहे हैं, फरमाइशी भी हैं, तो हर स्टेशन जो है वो आप ही लोगों के लिए है, मतलब तमाम सुनने वालों के लिए ही है। तो हम भला कैसे आपको इग्नोर कर सकते हैं। आपका बेहद शुक्रिया, नया साल आपको भी बहुत मुबारक हो। आगे बढ़ें। सर जी नमस्कार। सर जी तो है नहीं जी, मैडम जी हैं। आगे बताइए क्या कहना है। मैं उर्दू सर्विस का पुराना श्रोता हूँ और मुझे आपकी सेवा के, हमारी सर्विस के सारे ही प्रोग्राम बेमिसाल लगते हैं। और मेरी ये गुजारिश है कि उर्दू सर्विस के प्रोग्राम इंटरनेट के साथ साथ DTH रेडियो पर भी सुनने को अगर मिलने लगें तो जो सामीन हैं वो जो बहुत दूर दराज के हैं वो भी जुड़ पाएंगे और जो हमारे सामीन की तादाद है वो भी बढ़ जाएगी। बहरहाल मैं गुजारिश कर सकता हूँ। ये कौन थे? ये थे डॉक्टर सिया शरण, ज्योतिषी, नर्मदा कॉलोनी, मंडला, मध्य प्रदेश से। डॉक्टर सिया शरण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरी जानिब से भी आदाब, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप काफ़ी पुराने हमारे सामीन हैं, लेकिन मुझे नया सा लगा आपका नाम। ये मैं ये नहीं कह रही कि आप नए हैं या पुराने नहीं हैं, ये तो मेरी खुद की गलती है कि आप बहुत पुराने हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि पहली बार हम और आप मिल रहे हैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से। खैर मकदम आपका। और जहाँ तक बात यही कि आप DTH रेडियो पर सुनना चाहते हैं, तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करूँगी, अर्ज़ करूँगी कि ज़रा इंतज़ार कीजिए। कुछ बातों के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक। और अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है अबरार खान और सईदा खानम का अलहसना, तहसील शेगांव, ज़िला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से ईमेल। इन्होंने लिखा, बादी सबा की नरम नरम सरसराहट, ठंडी ठंडी दिल को गुदगुदाने वाली चाहत, सुरीली नज़ाकत, सुबह सवेरी नींद से बेदार होने वालों के लिए पैगाम मसरत हुआ करती है। जब कभी भी वक्त गर्दिश करता है तो अपनी रफ्तारी से हर कोई कासिर हो जाता है। ऐसी ही मौजे सबा की नशरियात का बदलता वक्त नींद से जागते हुए लम्हात का इंतज़ार करवाते रहता है। 21 दिसंबर मौजे सबा के तहत महताब फरीद कवाल हम नवाओं से कवालियाँ सुनी, दिल झूम उठा। 20 दिसंबर जनाब मुजीब सिद्दीकी का लिखा ड्रामा अंजाम कार, एक लाजवाब पेशकश लगी। सर्दी के आखिरी अयाम, अरे अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत ही हुई है सर्दी की। दिसंबर है ये अबरार भाई, अभी तो जनवरी पूरा मज़ा देगा आपको। इस कदर धुंध होगी, कोहरा होगा, नरम नरम सी दबीज़ एक चादर सुबह सुबह जब आप उठेंगे शबनम की वो बिछी हुई होगी। अगर फर्श है तो वो भी गीला ही मिलेगा आपको, और अगर कहीं आसपास पार्क है, गार्डन है आपके घर में या घर के आसपास, तो वो बिल्कुल एकदम पानी से जैसे तमाम पेड़ पौधों ने और घास ने गुस्ल कर लिया हो। ठंडे ठंडे पानी की बूंदें क्या मज़ा देंगी। अभी कहाँ आखिरी लम्हात, अभी तो लंबा है सफ़र जनाब। खैर आगे लिखा कि अपने शबाब पर हैं, घर के आंगन में रक्स करते करते घर के दरो दीवार को भी अपनी चादर से
रंगते हुए तामिल इरशाद सुनने का मज़ा कुछ अलग ही लगता है। 20 दिसंबर का तामिल इरशाद नईम भाई की मेज़बानी में सुना और तमाम नगमों की जुदा जुदा कतारें नशरियात को मज़ीद खूबसूरत बना गई। अंदाज़े पेशकश भी अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। 21 दिसंबर जनाब अजहर अफसर साहब का लिखा ड्रामा रिहाई के बाद इस ड्रामे की उम्दगी की क्या बात हो सकती है, जो बहन भाई की मोहब्बत को परवान चढ़ा दे। अपने पन के एहसास ने दिल को खुश कर दिया। उसने गज़ल प्रोग्राम भी अच्छा लगा। ए हरिहरन और मुन्नी बेगम की गाई हुई गज़लें बेहतरीन लगी। मेरी पसंद की नशरियात भी इस बार जुदा गाना थी। नईम भैया ने उनकी पसंद के कवालियाँ सुनवाकर अपनी पसंदीदगी को कामयाबी के जेवर से आरास्ता कर दिया। शौक और ज़ौक़ की तमन्नाएं खिल उठी। बाकी क्या रहा बाकी और भी बहुत कुछ रहा, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत, मतलब मेरी पसंद के सिवा। खैर, आपने प्रोग्राम पसंद फरमाया, शुक्रिया। मैं नईम भाई तक ज़रूर आपकी पसंदीदगी पहुँचाऊँगी। आगे लिखा इन्होंने, दिसंबर में आपका ख़त मिला, 19 दिसंबर का सुना। नईम भाई की मेज़बानी से हमें कोई शिकवा न गिला, हमदर्दी के लफ्ज़ों से खुलूस का गुलशन खिला। तर्जुमानी की रवानी से मुसर्रतों का सबक मिला। उफ़, किस कदर शायराना है आपका ख़त। हमारा भी ख़त शामिल हुआ, दिल के अंजुमन में एक और फूल खिला। और शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दुआगो अबरार खान और उनके हमराती सईदा खानम अलहसना, शेगांव तहसील ज़िला बुल्डाना, महाराष्ट्र से इन्होंने ईमेल किया। बहुत बहुत शुक्रिया जो प्रोग्राम आपने पसंद फरमाए। हम तमाम लोगों तक आपकी पसंदीदगी पहुंचाएंगे। सर्दी है, अभी तो शुरुआत हुई है, फिर से यही कहूँगी कि खूब मज़े लीजिए इस मौसम के भी, और हमारे प्रोग्राम सुनते रहिए और इसी तरह खूबसूरत शेर व शायरी से मुज़य्यन अपने ख़ुतूत जो हैं वो इरसाल करते रहिए। अच्छा लगा आपका ईमेल हमें, और ये ज़रूर कहेंगे आपसे कि बहुत एक लंबा ख़त है। नया साल मुबारकबाद कह दूं जल्दी से, क्योंकि पूरा करना है प्रोग्राम। अबरार भाई और सईदा साहिबा को मेरी तरफ से 9.5 की पुरखुलूस मुबारकबाद। अब ये देखिए, बहुत तवील लिखा है एक ईमेल। राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क, मध्य प्रदेश, शाहजहाँपुर से मनमोहन राजावत राज, और साथ में है मधु राजावत और राशि रक्षित राजावत का नाम भी इन्होंने भेजा है। क्या लिखते हैं चलिए देखते हैं ज़रा। वैसे मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, धड़कता तो रहता, ये तेज़ हो गई रफ्तार कि इतने लंबे ईमेल में कहीं बहुत सारी शिकायतें ना हो कि उनको पढ़ते पढ़ते और उनके जवाब देते देते ये न जाने क्या हो। खैर, इन्होंने लिखा, महोदय नमस्कार, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं, आपको भी नमस्ते, आदाब। मनमोहन रजावत जी लिखते हैं कि साल का आखिरी आपका ख़त मिला प्रोग्राम है। जाते साल को हम दिल से सलाम करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं उर्दू सर्विस ने अपने तमाम सामीन का इस साल भी भरपूर मनोरंजन किया, ख्याल रखा। फरमाइशी प्रोग्राम भी सामीन की मांग पर चलाते रहे, इसके लिए दिल से उर्दू सर्विस का शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, शुक्र है कि इब्तिदा में तो कुछ उम्मीद बंधी कि बहुत सारी बातें नहीं होंगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि शुरुआत बड़ी अच्छी अच्छी है। खैर, आगे पढ़ती हूँ। कहते हैं कि आगे मुंबई से जो पेश होते हैं प्रोग्राम और कई दूसरे रेडियो स्टेशन जो हैं, विविध भारती वगैरह ने पिछले लगातार 2 साल से बार बार बहुत कहने के बाद, गुजारिश करने के बाद भी कोई फरमाइशी प्रोग्राम आज तक शुरू नहीं किया, और यही वजह है कि उसके जो सामीन की तादाद है भारी तौर पर उसमें गिरावट आ गई है, और उर्दू सर्विस एशिया भर के तमाम सामीन का वाहिद चहीता और पसंदीदा स्टेशन है। अब क्योंकि सप्ताह भर में एक नया साल शुरू होने वाला है, तो हम उर्दू सर्विस परिवार में नईम खान, शमीम, ये नईम खान आप उन्हें क्यों कहते हैं? वो नईमुद्दीन सिद्दीकी हैं, वो खान नहीं है, तो उनका नाम है नईमुद्दीन सिद्दीकी। मैंने इसलिए करेक्ट किया कि जब आप लोगों के नामों में ज़रा सी भी कुछ गलती होती है तो आप भी तो बड़ा शोर शोर करते हैं सभी लोग, मेरा नाम ये नहीं ये था, तो फिर हम भी कहेंगे कि हमारा नाम ये नहीं ये था। तो एक और जगह पर अभी मैंने किसी ईमेल में पढ़ा, मैंने नाम पूरा नहीं लिया था, वहाँ भी किसी ने लिखा उनको नईमुद्दीन खान, ही इज़ नॉट खान, ही इज़ सिद्दीकी। आगे इन्होंने लिखा शमीम उस्मानी, अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला भी खान नहीं है, अब्दुल्ला है वो, सिर्फ उनका पूरा नाम ही अब्दुल्ला है, और सबिहा सहित
अपने तमाम अनाउंसर साथियों को, स्टेशन डायरेक्टर को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन रजावत जी, आपको भी साल नौ की पुरखुलूस मुबारकबाद हमारी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से। कहते हैं देखते ही देखते कोविड-19 से लड़ते लड़ते 2 साल पूरे होने को आ गए हैं और हम तमाम सामीन इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब उर्दू सर्विस को भारत सरकार से फिर से रेडियो और DTH पर नशरियात शुरू करने की इजाज़त मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बार बार हमारे गुजारिश करने के बावजूद भी उर्दू सर्विस की नशरियात अभी तक इन ज़रायों से शुरू नहीं की गई हैं। हमारी आखिरी उम्मीद अब भारत सरकार के आने वाले नए बजट पर टिकी हुई है, जो अगले साल आएगा। हम तमाम सामीन ये अपील बार बार कर रहे हैं कि इंटरनेट के ज़रिए हम सभी को उर्दू सर्विस सुनना काफ़ी महंगा पड़ रहा है। फिर तकनीकी नज़रिए से भी लगातार उर्दू सर्विस इंटरनेट पर सुनना ठीक नहीं है। कारण इसके वजह से टेलीफोन से मुतालिक जो भी काम होते हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वो नहीं किए जा सकते हैं। पढ़ाई से मुतालिक काम भी नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं। ये नौकरी से मुतालिक भी नहीं है क्योंकि नेट पर लगातार सुनते वक्त किसी का फ़ोन आने पर उर्दू सर्विस अपने आप बंद हो जाता है और बाद में फिर से कनेक्ट करना पड़ता है। इसलिए इसका रेडियो या फिर DTH पर चालू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम तामील इरशाद प्रोग्राम के बारे में ये कहना चाहते हैं कि बार बार कहा जाता है कि केवल एक ही ईमेल फरमाइशी प्रोग्राम में किया जाए, लेकिन ये देखा जा रहा है जो 2-2, 3-3 ईमेल शामिल करते हैं उनका नाम जल्दी ही प्रोग्राम में आ जाता है, लेकिन एक ईमेल करने वाला कई बार इंतज़ार करता रह जाता है और नाम ही नहीं आता है, फिर प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है और इंतज़ार में बैठे रहते हैं अपनी फरमाइश सुनने के, प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। ये हमारे सुझाव हैं, इन्हें आप नए साल में ज़रूर लागू कीजिएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। कई फरमाइशी प्रोग्राम दिन में भी कोई ना कोई सा शुरू करने के लिए सामीन चाहते हैं, तो उर्दू सर्विस ऐसा ज़रूर करें, इसे आप अवश्य शुरू कीजिए। इन दिनों एक बार फिर कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं, इसलिए तमाम सामीन से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए, उन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए मेरी भी गुजारिश है। और बाहर निकलने पर जैसे मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बनाए रखें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना जाएं वगैरह। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन के लिए भी इन्होंने अपनी राय और तजवीज़ तमाम सुनने वालों को भेजी है और मुबारकबाद दी है नए साल की। कहते हैं कि अगले साल में भी मुलाकात होती रहेगी, ऐसा हम दिल से ख्वाहिश रखते हैं। आपका अपना राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क, MP शाहजहाँपुर से मनमोहन रजावत वगैरह वगैरह सब लोग हैं। मैं थोड़ा सा वाइंड अप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब से ज़रा सी देर के बाद ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पेश करेंगे मन की बात। तो आपका ईमेल बहुत जो तवील था, राजावत कॉम्प्लेक्स के मनमोहन रजावत जी, बहुत शुक्रिया आपका। सारी बातें आपने सही लिखी हैं और हमारी भी कोशिश है कि कुछ इस तरह के फरमाइशी प्रोग्राम जल्द अज जल्द शुरू किए जाएं और देखते हैं कि कहाँ तक होता है। रही बात ईमेल्स की और नई नाम आ पाता और 2-2, 3-3 नाम आ जाते हैं किसी किसी के, तो देखिए उसमें मामला ये होता है कि जो यहाँ पर प्रेजेंटर है वो अपना गाना भी प्ले करेगा, उसको सर्च भी करेगा, आपके ईमेल्स भी पढ़ेगा। अब अगर उसमें वो बहुत अटक के बहुत जांच पड़ताल करके शामिल करेगा तो बीच बीच में पॉजेज आएंगे, तो आपको लगेगा कि ये इतना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अटक गए हैं, क्योंकि उसका ध्यान स्क्रीन पे चला गया। अब वो ये देख रहा है कि ये वाला रिपीट है, इसको छोड़ूं मैं, अब दूसरा नया वाला तलाश करूं। सीक्वेंस में आते जाते हैं तो कई बार गलती से ही सही वो नाम दोबारा ले लिया जाता है। कई बार लोग ड्रॉप कर देते हैं कि ये दोबारा भेज रहे हैं इसलिए मैंने ड्रॉप किया। और बाकी कोशिश सबकी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नामों को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। अब ये तो देखिए आप लोगों के ऊपर ही है ना, माशाल्लाह आप सभी लोग बालिग हैं, समझदार हैं कि अब ये कि किसी का अगर शामिल हो गया नाम, उसकी फरमाइश का नगमा भी प्ले हो गया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगला ईमेल आप उसका शुक्रिया के लिए, नवाजिश के लिए या सिर्फ तारीफ़ के लिए भेजें। यहाँ पर उतना ज़्यादा वो नेसेसरी नहीं है। आप ये सोचिए कि आप खुद ही इस तरह की दूसरे ईमेल करके दूसरे लोगों का, अपने ही साथियों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ प्रेजेंटर जो है उसका दिमाग लगातार जो है वो हरकत में है, वो कई काम जो है बैक वक्त कर रहा है, जो आपको कुछ पता भी है कुछ नहीं भी पता है, तो
ایسے میں یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہاں فلٹر بھی نہیں اس کو فلٹر بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی اب روک دو کہ اس نے ایک بھیج دیا ہے تو اب یہ دوسرا کیوں بھیج رہا ہے. بہرحال اب میں یہاں پر یہ پروگرام ختم کرتی ہوں. آپ تمام لوگوں کو اردو سروس کی پوری ٹیم کی جانب سے نئے سال کی پرخلوص مبارکباد. اور آپ نے سنا آپ کا اپنا ہی پروگرام جس کا نام تھا آپ کا خط ملا. آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس DRM 1071 موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر اپنی نشریات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. سامعین آپ کو بتا دیں اب سے چند ہی لمحوں کے بعد وزیر اعظم ہند عالی جناب نریندر مودی پیش کریں گے من کی بات.